Everyone. So this is June Politicon, and I am Nitish Kumar, and I have completed my masters in political science from JNU in 2022, and now I am a PhD candidate at Center for Political Studies only, and I am working on Indian judiciary and the caste question. So before we start, let's know something about June Politicon. So we have founded it, I think, in when we cleared our master's entrance in 2020. So we founded there some YouTube channels so that we can upload videos on political science. But when we get admission at CPS, we didn't get time, और ये पूरा प्रोजेक्ट जो है हम लोगों का वो 2 साल के होल्ड पे चले गया. But when again we actually passed out masters, so we thought that we should do something. And even the entrance mode, examination mode has been changed in last years. Now it has CUT, and so we started it. So these all things are here. You can just scan the QR code and register for the classes. So we will complete our classes uh, at the end of April. We will start in mid-Feb. We have 3 or 4 people. We will teach you all the syllabus that is mentioned in CUT. Details are in this QR code, and we will also put it in the video description. So yeah, we will end the classes at the end of April. For whole month of May, we will send you the questions, mock paper, unit wise, in order to prepare, क्योंकि सीयूटी और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस एमसीक्यूज जितने लगाएंगे आप, कॉन्सेप्ट उतना क्लियर होगा. तो वी विल डू द यूनिट वाइज मॉक, है ना, एक चैप्टर का. जैसे अगर आईआर है तो आईआर के इस सेक्शन का आज मैं यूनिट मॉक टेस्ट लूंगा. तो पूरा मई हम लोग ये करेंगे, एंड सो दैट यू कैन अपेयर इन द एंट्रेंस इन द मंथ ऑफ जून और जुलाई, वेन एवर इट हैपन्स. सो 15 फेब से हम लोग का क्लास शुरू हो जाएगा. 13 फरवरी को एक इंट्रोडक्टरी होगा, जो भी हमारे ट्यूटर्स होंगे और जो भी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स होंगे, तो उनके बीच एक इंटरेक्शन होगा, एंड देन वी विल स्टार्ट एक दिन के गैप के बाद. So this is one of the mock classes. Basically, I will explain the state here. So this will be something our mood to teach. हम लोग ऑनलाइन गूगल मीट क्लासेस पे मिलेंगे, और वहीं पे हम लोग पीपीटीज के थ्रू जो है सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे. एंट्रेंस एग्जामिनेशंस मोस्टली फैक्ट्स पे होते हैं, एमसीक्यू जब से आया है. बट सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना हमारा मकसद नहीं होगा. हमारा मकसद होगा कि आप जहाँ भी जाएं, मास्टर्स करें, तो आप एक अच्छे पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स को बनकर के उभरें, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे क्लियर होने चाहिए. तो इस वीडियो में हम लोग स्टेट को समझेंगे. देयर अगर स्टेट को ही पढ़ाने जाए तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, बट वी विल रैप अप इट इन लेस देन हाफ एन आवर. So basically in this video I will explain the state. So what is the state, and then theories of the state, which is divine theory, social contract, utilitarian, liberal, Marxist, feminist, and then we will see 2 or 3 MCQs questions. So the question है कि state क्या है? तो there is a line by Leon Trotsky. So the line is very, I found it very provocative statement on the state, that you may not be interested in the state, but the state is certainly interested in you. आजकल के टाइम में व्हेन स्टेट का सर्विलांस इतना इंक्रीज हो चुका है, बढ़ चुका है, इन ऑल योर एवरीडे स्फेयर्स, यू से दैट एवरीवेयर इज a state. You talk over the phone call about the pizza, and when you open your Google, the pizza ad is everywhere. So these things are basically that कि आखिर ये state क्या है. So there are lots of definition of the state. एक modern conception कहाँ से उभर कर का है. तो मैक्स वेबर ने सबसे पहले बताया था कि the monopoly over the legitimate use of force within a common territory. तो इसमें क्या आ जाता है, एक तो टेरिटरी आता है, एक मोनोपोली ऑफ द मीन्स ऑफ फिजिकल वायलेंस और लेजिटिमेसी. बट उससे पहले हम समझते हैं कि अभी जो एक मॉडर्न कंसेप्शन ऑफ द स्टेट है, वो कहाँ से आया. तो वेस्टफेलिया की ट्रीटी आप लोगों को पता होगी, इनलाइटनमेंट के बाद जो हुआ था. तो वेस्टफेलिया की ट्रीटी के बाद एक मॉडर्न कंसेप्शन ऑफ द स्टेट आया, कि द स्टेट और रिलीजन का डिस्टिंक्शन वहां पे क्रिएट होता है. कि पहले क्या होता था कि जो रिलीजियस पावर होता था उसका स्टेट पे, यानी जो रूलर्स होता था उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता था, और जो रिलीजियस अथॉरिटी होता था वो सुपरसेट कर देता था किसको, राजे को, जो रूलर होता था, जो भी होता था. ठीक है. बट वेस्टफेलिया की ट्रीटी के बाद ये डिस्टिंक्शन क्रिएट हुआ दैट स्टेट इज सुप्रीम,
है ना, उसका एक सेक्युलराइजेशन का प्रोसेस हो गया कि स्टेट का रिलीजन से कोई उतना लेन देन नहीं होगा और रिलीजन कोई ऑथोरिटी सुप्रीम ऑथोरिटी नहीं होगी, बल्कि स्टेट एक सुप्रीम ऑथोरिटी होगी, ठीक है, जो कि रूल करेगी। एंड दीज थिंग्स लेटर ऑन बिकम 1933 में जब मॉन्टे वीडियो कन्वेंशन ऑन राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ स्टेट होता है, तो वो चार चीजें बेसिकली एक्सप्लेन करता है। एक, ये डिफाइंड टेरिटरी होना चाहिए कि आपका भाई ये हमारा एरिया है, ठीक है। स्टेट में चार चीज, पहला डिफाइंड टेरिटरी, दूसरा है कि गवर्नमेंट हमारा होना चाहिए, एक सरकार वहाँ होनी चाहिए, परमानेंट पॉपुलेशन होना चाहिए और एक इंटरनेशनल रिलेशंस में जाने की कैपेसिटी होनी चाहिए। तो ये चार चीजें जिसके पास है उसी को हम स्टेट कह सकते हैं। दिस इज वेरी क्लियर कट डेफिनेशन दैट व्हाट इज द स्टेट, व्हाट इज अ स्टेट। तो डिफाइंड टेरिटरी हमारा एक बाउंड्री होगा, गवर्नमेंट होगी, परमानेंट पॉपुलेशन होगा और इंटरनेशनल रिलेशन में जाने की कैपेसिटी होगी, कि कोई भी स्टेट डिसाइड कर पाएगा अपने तरीके से कि मुझे इस देश के साथ इंटरनेशनल रिलेशन बनाने हैं या इसके साथ नहीं बनाने। दिस इज समथिंग लाइक सॉवरेन कॉन्सेप्ट, एक संप्रभु होगा कि हम डिसीजंस क्या ले रहे हैं वो उस स्टेट के लोग डिसाइड कर रहे हैं, कोई बाहर की सरकार या कोई बाहर के देश के लोग डिसाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इट हियर, व्हाट अबाउट द आइडिया ऑफ सॉवरेन। कैन ए डिफाइंड टेरिटरी बी कॉल्ड स्टेट विदाउट सॉवरेनिटी? नो। यदि आपके पास सॉवरेन पावर नहीं है तो मुझे नहीं लगता है कि हम उसको स्टेट कह सकते हैं। तो मैक्स वेबर ने भी इसी प्रकार का डेफिनेशन दिया कि स्टेट के पास जो है एक लेजिटिमेट यूज ऑफ फोर्स होता है विद इन ए कॉमन टेरिटरी। दिस इज वेरी फेमस डेफिनेशन that is given by Max Weber, but criticized by a lot of thinkers, even basically in the Marxist tradition. There's a lot of criticism that how can someone give state is basically, we will explain it later, है ना, in different। सो डिवाइन थ्योरी ऑफ द स्टेट क्या है? सो गाइस बेसिकली मैं इस वीडियो में ज़्यादा थिंकर के पर्सपेक्टिव से नहीं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर स्टेट को किसने किस प्रकार से समझा है और किस प्रकार से उसका एक कॉन्सेप्ट का इवेल्युएशन हुआ है। तो डिवाइन थ्योरी ऑफ द स्टेट में क्या है, जब हम मनुस्मृति पढ़ते हैं, दैट इज वन ऑफ, इसको अम्बेडकर ने जलाया था पब्लिकली, दैट इज बेसिकली अ ब्राह्मणिकल लिटरेचर, जो एक कास्ट सिस्टम को या वुमेन की कंडीशन को जो है इतने ही डिग्रेडेड फॉर्म में देखता है। तो मनुस्मृति ने क्या था, द किंग इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड ऑन द अर्थ। तो बेसिकली जो राजा है वो भगवान का एक क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है। सो द वर्ड्स दैट इज being spoken by the king is not his word, it's the word that is coming from the god. So this is something like that। तो एक प्रकार का आउटडेटेड थ्योरी है, बिकॉज नॉट रेलेवेंस इन टूडेज टाइम्स। अगर किसी को बोलो आप कि नहीं, प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं बोल रहा है, वो राम भगवान बोल रहे हैं, तो दिस इज नॉट, कोई बिलीव नहीं करेगा। इवन इवन इन द क्रूड फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी नो वन बिलीव दैट द प्राइम मिनिस्टर्स और द प्रेसिडेंट्स, Obama, Trump, Bolsonaro are basically the representative of God, and it's the word that is being spoken by these leaders are not their own words, but the words coming from the Christ or the God or the Ram or the Allah or anyone. So this is basically a divine theory of the state, and this is outdated theory. But how it has become outdated? That is one of the most profound question, कि आखिर इस प्रकार का जो एक यूरोपियन मॉडर्निटी, एक रिलीजन का इतना बड़ा जाल था, जो नेटवर्क था, उसको किस प्रकार से किसने तोड़ा, कौन ब्रेक किया, आखिर किसने ये बोला कि द स्टेट इज नॉट ऑर्गेनिक, द स्टेट इज नॉट नेचुरल, इट्स द पर्सन, इट्स द मैन, इट्स द वुमेन हु क्रिएटेड द स्टेट, it's we basically found it, we are the founders of these whole networks। तो जब हॉब्स आते हैं, लॉक आता है, रूसो आता है ना, तो हॉब्स द फर्स्ट टाइम व्हेन ही एक्सप्लेन दैट द पीपल आर इन द स्टेट ऑफ नेचर आर इन क्योस, दे आर ब्रूटल नेस्टी, कि एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, फाइट करते रहते हैं, स्टेट ऑफ वॉर में है। जो हमारा नेचुरल कंडीशन है वो स्टेट ऑफ वॉर है। तो जब स्टेट ऑफ वॉर है तो फियर में हमेशा एक दूसरे के साथ है। वी विल एक्सप्लेन दीज ऑल थिंग्स इन वेरी डिटेल जब हम थिंकर्स को पढ़ेंगे, थ्योरी को पढ़ेंगे और आइडियोलॉजी को पढ़ेंगे, ये सारा चीज एक्सप्लेन होगा। लेट मी चेक इफ इट इज रिकॉर्ड गेटिंग रिकॉर्ड और नॉट। या इट्स डन। ओके, सो वी विल एक्सप्लेन दीज ऑल थिंग्स इन वेरी डिटेल। तो सोशल कॉन्टेक्ट थ्योरी में जब हॉब्स आते हैं तो बोलते हैं स्टेट ऑफ नेचर में कियोस है, इस कारण से लोग हमेशा एक दूसरे से फाइट करते रहते हैं। लेकिन उनको फिर ये समझ में आता है कि नहीं, हम लोग को इस फाइट से बाहर निकलना चाहिए, अदरवाइज हम लोग एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, हम लोग खत्म हो जाएंगे, कुछ बचेगा नहीं हम लोग का। देन these people sit together and they think that we have to give up our all rights
एंड गिव इट टू वन काउंसिल ऑफ अथॉरिटी। एक पर्सन में या एक एक अथॉरिटी में, एक बॉडी में दे देना चाहिए सारे राइट्स को। तो ये सारा राइट्स जो था वो एक बॉडी में दे दिया गया। दैट्स बॉडी इज नोन एज द स्टेट। ये बॉडी जो है ना वो स्टेट कहलाया। तो ये डिवाइन थ्योरी को यहाँ से ब्रेक किया गया कि भाई ये कोई भगवान भगवान नहीं है, स्टेट कोई ऑर्गेनिक नहीं है, नेचुरल नहीं है, किंग कोई बहुत वो नहीं है कि भाई भगवान बनाया है और उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, उसकी अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। इट्स द पीपल हु मेड द स्टेट। ये लोग हैं जिन्होंने स्टेट को बनाया है। वी द पीपल आर द फाउंडर्स ऑफ द स्टेट। उसी प्रकार से फिर लॉक आते हैं, रूसो आते हैं। लॉक का कॉन्सेप्ट क्या है? हॉब्स, लॉक, रूसो, फिर हम डिस्कशन पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। लॉक बोलता है कि नाइट वॉचमैन स्टेट होना चाहिए। नाइट वॉचमैन स्टेट बेसिकली क्या है कि स्टेट केवल प्रोटेक्ट करेगा राइट्स को आपकी, वो आपके लोगों की इंटरफेयर, पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगा। तो वी विल एक्सप्लेन दिस थिंग्स। और रूसो जो है, स्टेट इज द रिजल्ट ऑफ जनरल विल ऑफ इंडिविजुअल्स। तो रूसो ने बोलते हैं कि जो स्टेट है वो कुछ, दिस ऑल बेसिकली सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो रूसो यहीं पे वो कॉन्सेप्ट लेकर के आता है कि जो स्टेट है वो क्या है, लोगों का, इंडिविजुअल का जनरल विल का एक 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 फॉर्म है। तो जनरल विल में दो चीज होता है, एक रियल विल और एक्चुअल विल। तो जो विल और रियल विल का कॉम्बिनेशन नहीं है। द डिफरेंस बिटवीन इज द जनरल रियल विल एंड एक्चुअल विल इज दैट द एक्चुअल विल इज बेसिकली, जब कंडीशंस में हम ना अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं तो वो एक्चुअल विल होता है। और जो रियल विल होता है वो हमारा प्योर फॉर्म ऑफ थिंकिंग होता है, जो कि हम अपने बायसनेस या कंडीशन या कॉन्टेक्स्ट के बियॉन्ड होकर के सोचते हैं। तो जो जनरल विल होता है ना वो एक्चुअल विल का एग्रीगेशन नहीं होता, वो रियल विल का एग्रीगेशन होता है। तो रियल विल का जब हम एग्रीगेशन करते हैं तो वो जनरल विल कहलाता है। तो उसमें हो सकता है कि बहुत सारे कंडीशन से हमारा नुकसान हो सकता है, बट स्टिल हम वो डिसीजन लेंगे क्योंकि वो लार्जर सोसाइटी के बेनिफिशियल में जाएगा। तो दैट इज द बेसिकली एग्रीगेशन ऑफ रियल विल विद जनरल विल। And Rousseau says that state is the basically amalgamation of general will. So we, the people, has basically founded the state. So these all traditions challenge the question of divine theory and founded in the basis. Main concept ये है कि state को लोगों ने बनाया है। We the people basically founders of the state. यूटिलिटेरियन थ्योरी ऑफ स्टेट में क्या है? बहुत ही सिंपल है, प्लेजर और पेन। तो बेसिकली उनका ये कहना है कि अगर कोई भी चीज मैनेजमेंट अगर करना है, इट इज मैनेज्ड बाय इंडिविजुअल, तो ये जस्टिफाइड उसी ग्राउंड पे होगा इफ इट क्रिएट्स ग्रेटर हैप्पीनेस देन एनी अदर सेट ऑफ अरेंजमेंट। सपोज दैट अगर राम है और श्याम है, सो लेट्स नॉट राम, दिस टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स आर वेरी बोरिंग, लेट्स टेक समथिंग एल्स कि सपोज दैट नरेंद्र मोदी है एंड मनमोहन सिंह है। तो उनका जस्टिफिकेशन कैसे होगा कि हु इज बेसिकली गुड प्राइम मिनिस्टर, बेटर प्राइम मिनिस्टर in the Indian history। तो इस बात पे जस्टिफिकेशन होगा कि who has created more happiness, इधर नरेंद्र मोदी और मनमोहन सिंह। तो ये बेसिक प्रोसेस है। तो स्टेट को उन्होंने इस ग्राउंड पे जस्टिफाई किया कि द स्टेट जो है वो एक ब्रिंग्स अबाउट ग्रेटर एंड मोर हैप्पीनेस देन एनी अल्टरनेटिव पॉलिटिकल अरेंजमेंट। ठीक है, एंड देन जेएस मिल्केम which basically extended the theory that can be considered him as utilitarian theorist। he talks not only about quantity but also quality। तो जेएस मिल बेंथम बेसिकली केवल क्वांटिटी की बात करता है और जेएस मिल आता है कि नहीं, क्वालिटी भी चाहिए। हैप्पीनेस तो दे रहे हो लेकिन हैप्पीनेस का इम्पैक्ट क्या हो रहा है, कैसा हैप्पीनेस हो सकता है? दारू पी के तो हैप्पीनेस मिल रहा है, लेकिन दारू पीने के बाद वो जो हैप्पीनेस है क्या वो हमारे बेनिफिशियल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमारे इंप्रूवमेंट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दैट इज बेसिकली द ग्राउंड जिसके बेसिस पे यूटिलिटेरियन थ्योरिस्ट ने स्टेट को जस्टिफाई किया। लिबरल थ्योरी क्या है? सो देयर इज a very much connection between the social contract theory of the state and the liberal theory of the state। So I made it distinction क्योंकि liberal, so I just want to break it from the divine theory of the state। That's why I explained in different section social contract। तो liberal theory state यही है कि state should not impose its own conception of good on the citizens। It must only ensure the freedom and liberty of people so that they can pursue their ends freely। That's what basically argued by John Locke। लेकिन लिबरल्स डिवाइडेड हैं किस बात पे कि अमाउंट ऑफ इंटरफेरेंस कितना देना चाहिए। सपोज दैट क्या हो गया कि जब लिबरलिज्म आया, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव लिबरलिज्म, कि स्टेट केवल नाइट वॉचमैन होगा, राइट्स की गारंटी देगा और लोगों के मैटर में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। लोग जो है वो खुद बुद्धिमान है, तेज हैं, बलशाली हैं, सब कुछ सोच सकते हैं, अपना भला बुरा जानते हैं।
स्टेट को बस ये इंश्योर करना है कि जब लोग अपनी बुद्धि को एक्सरसाइज करने के लिए जाएगा, तो उसको कोई प्रकार का बाधा नहीं पहुँचाएगा। कोई भी प्रकार का सोशल कियोस्क उसको रोकेगा नहीं अपनी फ्रीडम को एक्सप्रेस करने में। और वो अपनी फ्रीडम को एक्सप्रेस करके कितना भी वेल्थ को एक्यूमुलेट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। दैट इज़ द बेसिकली कांसेप्ट ऑफ नेगेटिव लिबर्टी। जब स्टार्टिंग में लिबरलिज़्म या लिबरल थ्योरी आया तो वो यही आर्गुमेंट दिया। बट इससे आर्गुमेंट से क्या हुआ? इस आर्गुमेंट से ये हुआ कि वेल्थ का एक्यूमुलेशन हो गया, गरीबी और अमीरी की खाई काफ़ी बढ़ती गई। देन द पॉजिटिव थ्योरी ऑफ लिबरलिज़्म आया, द पॉजिटिव राइट्स जिसको हम लोग बोलते हैं या पॉजिटिव थ्योरी बोलते हैं। तो वो पॉजिटिव थ्योरी बेसिकली क्या बोला कि नहीं, इन ऑर्डर टू, क्योंकि हो सकता है कि कंडीशन सबकी अलग-अलग होगी, इसीलिए स्टेट को यहाँ इंटरफेयर करके उनको रोकना चाहिए, या उनको रोके नहीं तो एटलीस्ट उनकी कंडीशन को बेहतर बनाए, जो अपनी फ्रीडम को अच्छे तरीके से या अलग-अलग कंडीशंस के कारण एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं या उसको एन्जॉय नहीं कर पाते हैं। तो स्टेट का काम है कि यहाँ से सोर्सेस को निकाल करके उधर ट्रांसफर करें। दैट इज़ द बेसिक कांसेप्ट नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो ये अमाउंट ऑफ इंटरफेरेंस है कि कितना होना चाहिए। तो जेएस मिल का जब हम कांसेप्ट पढ़ेंगे, जब जेएस मिल को पढ़ेंगे तो इसमें हम ये आएगा कि सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस और अदर रिगार्डिंग एक्शंस क्या है। इसमें मिल का आर्गुमेंट है कि ऐसा कोई एक्शन जो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें ही प्रभावित कर सके, इसमें स्टेट को अधिकार नहीं है इंटरफेयर करने का। लेकिन जो अदर रिगार्डिंग एक्शंस है, हम हमारे अगर किसी एक्शन से किसी दूसरे को प्रभाव पहुँचता है, इन दैट केस स्टेट हैज़ द अथॉरिटी टू इंटरवीन इंटू योर एक्शन कि आप ये करो और आप ये नहीं करो, क्योंकि इसका आपके इस काम का इम्पैक्ट किसी दूसरे व्यक्ति पे पड़ता है। Marxist theory of the state is very simple. We basically explain it in very well in condition in the later videos lectures. तो ये क्लास स्टेट है। तो मार्क्स के थ्योरी ऑफ द स्टेट में 2 कॉन्सेप्शन आता है। पहला कॉन्सेप्शन आता है जब हम लोग कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ते हैं, तो बेसिकली उसमें बोलते हैं कि जो स्टेट है वो कुछ नहीं है, वो बेसिकली बुर्जुआ जो है, जो कैपिटलिस्ट क्लास है, उसका एजेंट है और उसी की सारी कॉमन अफेयर को उसके लिए काम करता है। दैट इज़ बेसिकली द होल कांसेप्ट। State is nothing. The executive of the modern state is but a committee for managing the common affairs of the whole bourgeoisie, the Communist Manifesto. This is the first concept when Marx was writing the Communist Manifesto. तो उन्होंने बताया कि स्टेट के पास कोई ऑथोरिटी नहीं है, बेसिकली एजेंट है, कोई ऑटोनॉमी नहीं है। बट एटिन ब्रूमियर ऑफ लुइस बोनापार्ट में जब वो लिखते हैं तो वहाँ एक कंसेप्ट आता है रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट का। ठीक है, इसमें वो बोलते हैं कि नहीं, स्टेट के पास कुछ ना कुछ ऑटोनॉमी रहता है। वो ऑटोनॉमी इसीलिए नहीं आता है कि स्टेट पावरफुल है या अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकता है। वो ऑटोनॉमी इसीलिए आता है क्योंकि उस समय की सोसाइटी में जो अलग-अलग क्लासेस होते हैं, उनके बीच सॉलिडैरिटी नहीं होता है और कोई भी एक क्लास कंप्लीटली रूल करने की कैपेसिटी में नहीं होता है। सपोज दैट इन इंडिया व्हेन वी रीड द पॉल जब हम लोग पॉलिटिक्स इन इंडिया पढ़ेंगे, तो प्रणब बर्धन ने ये बताया कि इंडिया में जो बेसिकली स्टेट बना आफ्टर 1947, तो उसमें 3 क्लासेस ने रूल किया, बिग कैपिटलिस्ट, बिग फार्मर्स एंड ब्यूरोक्रेट्स। सो ये 3 क्लास जब रूल किया, ठीक है? तो ये 3 क्लास जब रूल किया तो क्यों किया? क्योंकि कोई भी एक क्लास जो है कंप्लीटली रूल करने की कैपेसिटी में नहीं था, अपनी हेजेमनी नहीं बना सकता था। दैट्स व्हाई तो वहाँ एक रिलेटिव ऑटोनॉमी हो गया स्टेट को कि भाई तीनों का इंटरेस्ट को एग्रीगेट करता था, नेगोशिएट होता था। तो ये थोड़ा डिफरेंट डिक्शन 2 चीज़ होता है। जब मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा तो उन्होंने डायरेक्टली बोला कि स्टेट के पास कोई ऑटोनॉमी नहीं है, कंप्लीटली एजेंट है इसका बुर्जुआ के बुर्जुआज़ और जो कैपिटलिस्ट क्लास है। बाद में जब एटिन ब्रूमेर, लुइस बोनापार्ट, क्लास वॉर इन फ्रांस के एनालिसिस को जब वो एक्सप्लेन करते हैं तो उनको बोलते हैं कि नहीं, स्टेट के पास थोड़ा रिलेटिव ऑटोनॉमी होता है। इसी सेम कॉन्सेप्ट को राल्फ मिलीमार्ड एंड निकोस पोलंजाज ने 1970s के डिकेड में न्यू लेफ्ट रिव्यू नाम की मैगज़ीन में पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया था। उन दोनों के बीच में डिबेट चला था, स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी ऑफ द स्टेट एंड द इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थ्योरी ऑफ द स्टेट के बीच में। हम लोग इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, ऐसे क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में आते हैं। फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ द स्टेट में बेसिकली 2 है, लिबरल और रेडिकल। एक सोशलिस्ट भी है, दैट इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट लिबरल फेमिनिस्ट बेसिकली स्टेट इंटरवेंशन को इतना जायज़ इस हिसाब पे उसको जस्टिफाई करते हैं कि ये प्रोमोटिंग इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन, लाइक रिजर्वेशन फॉर सीट्स इन पार्लियामेंट एंड द एक्सपेंशन ऑफ वेलफेयर स्कीम्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो लिबरल फेमिनिस्ट का मानना है कि हाँ, स्टेट जो है एक प्रकार का इमेंसिपेटिंग इंस्ट्रूमेंट हो सकता है फॉर द वुमेन इमेंसिपेशन, ताकि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन और हर एक चीज़ जो है हर एक पब्लिक स्फीयर में इंक्रीज़ हो। ठीक है? बट रेडिकल फेमिनिस्ट जो है सी स्टेट एज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेल पावर। बेसिकली उनका मानना है कि जो स्टेट है वो लॉ और अदर वेरियस मैकेनिज़्म्स के थ्रू क्या करती है,
वुमेन सबऑर्डिनेशन और साइलेंस को मेंटेन करते हैं और वो पैट्रियार्की को एक्सटेंड करता है। तो दिस इज बेसिकली फेमिनिस्ट थ्योरीज स्टेट, so that is a radical break from the earlier theories, that is very important. We will discuss कि इसमें कौन कौन थिंक कराएंगे later when we explain the state in more detail. So this is few MCQs. You all can answer the question in the comment box. We will provide the answers there only, or we can explain it later when you will register for the courses कि क्या answers होंगे. So that's it for today, guys. You all can register the courses. हम लोग पढ़ाएंगे आपको 13 फेब को हमारा इंट्रोडक्शन क्लास होगा। 15 फेब से हम लोग का जो है क्लासेस शुरू होंगे। अप्रैल के एंड तक हम सारे क्लासेस लेक्चर्स कंप्लीट कर देंगे और पूरा मई जो है आपका यूनिट वाइज मॉक टेस्ट होगा और जून में आप लोग सीयूटी अपेयर करेंगे। और हमें वो 3-4 ट्यूटर हैं हमारे पास, वो सभी मिलके पढ़ाएंगे। दे ऑल आर एक्सपर्ट्स इन देयर एरिया। और जो सीपीएस सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज में करेंटली पीएचडी कैंडिडेट हैं 3rd, 2nd, 4th ईयर में, वो लोग भी आएंगे गेस्ट लेक्चर्स के रूप में और अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि क्या क्या पॉलिटिकल साइंस में और करियर बन सकता है, एकेडमिया में क्या हो सकता है, यूपीएससी करना चाहिए, दिस ऑल थिंग्स दे विल डिस्कस। और कॉन्सेप्ट्स को भी वो लोग क्लियर करेंगे। तो हमारा जो मेन फोकस है फैक्ट्स पे नहीं है दोस्तों। You can get facts everywhere. It this is digital revolution, you know, you can get a lot. You can just buy the Subraranjan notes and you can get everything. बट हमारा जो मेन फोकस है वो है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्या कैसे इवोल्यूशन हो रहा है, क्योंकि आपको सिर्फ एंट्रेंस में नहीं आना है बल्कि आपको सीपीएस में सर्वाइव भी करना है, अदर यूनिवर्सिटीज में अच्छा स्कॉलर यदि बनना है तो हमारा मेन फोकस वो है। तो वी विल हम सारा डिस्क्रिप्शन देंगे, लिंक वगैरह देंगे, आप लोग रजिस्टर कीजिए। 1-2 दिन बचे हैं और 13th को मिलते हैं हम लोग फिर, एंड देन वी विल स्टार्ट आवर क्लासेस फ्रॉम द 15th फेब। दे आर वेरी मिनिमम फीस, सो वी विल सेंड यू ऑल द डिटेल्स कि कहाँ कैसे पे करना है। एंड द स्कॉलरशिप्स आर ऑल्सो अवेलेबल, तो अगर आप इन कैटेगरीज में आते हैं तो आप स्कॉलरशिप्स के लिए भी अप्लाई कीजिए और हम लोग फी वेव करेंगे आपको। बट इनिशियली यू हैव टू पे, so and when the course will be in, so we will return your money. So there are 10 scholarship in the political science and the 10 also in sociology. So initially you have to pay, but at the end you will get your money back. So that is the thing. Okay, then bye. Bye everyone.